السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، اس طرح کی پیاری پیاری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہے۔ السلام علیکم دوستو، پیش خدمت ہے ترسول کھنڈ کی داسی ایپیسوڈ نمبر 15۔ یہ راجہ باسودیو تھا۔ اس وقت وہ بالکل جوان نظر آ رہا تھا۔ ماتھے پر چندن تلک لگائے ہوئے بڑی بڑی سیاہ مونچھوں اور خوفناک آنکھوں سے وہ مجھے گھور رہا تھا۔ پھر اس نے اپنے گھوڑے کی ذہن میں اڑسا ہوا ترسول نکال لیا، 3 پھل والا چمکدار ترسول، اور اسے بلند کر لیا۔ مہاراجہ باسودیو کی جے پورے لشکر نے نعرہ لگایا اور میرے کان اس شور سے پھٹنے لگے۔ باسودیو گھوڑا دوڑاتا ہوا میرے سامنے پہنچ گیا۔ سمے آ گیا ہے مورکھ کہ میں ترسول میں تیرے شریر کو پرو دوں۔ میں نے آج تک تیرے ساتھ نیائے کیا، پر تو نے میری بات نہ مانی۔ تو جس اپسرا کے سپنے دیکھ رہا ہے وہ ترسول کھنڈ کی داسی ہے۔ اسے اوش ترسول کھنڈ کی داسی بننا ہے۔ وہ تیری نہیں ہو سکتی۔ میں نے دیوتاؤں کو وچن دیا ہے، اور اگر میں اپنا وچن پورا نہ کر سکا تو میری برسوں کی تپسیا بھشٹ ہو جائے گی۔ اب مجھے تیرے جیون کی چنتا نہیں ہے، میں کوئی اور اپائے کر لوں گا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ترسول تول لیا اور میں خونی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ اس وقت میرے کان میں ایک آواز آئی، شارک اسے سنبھالو، اور میرے داہنے ہاتھ میں کوئی سخت اور ٹھنڈی چیز آ گئی۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا تو وہ ایک تلوار کا دستہ تھا، پتلی اور چمکدار تلوار، اور وہ آوا اگر میرے کانوں میں دھوکہ نہیں کھایا تو وہ آواز میری برق کی تھی۔ ہاں، میں نے اس آواز کو صاف پہچانا تھا۔ تو میں بے سہارا نہیں ہوں۔ میرے محسن، میرے دوست میرے ساتھ ہیں۔ وہ میری مصیبتوں سے آگاہ ہیں اور میری مدد پر کمر بستہ ہیں۔ میرا دل بے انتہا بڑھ گیا اور میں نے گراتے ہوئے کہا، آج میں بھی تیرے سے پورا حصہ بے باک کر لینا چاہتا ہوں۔ نا ہنجار شیطان، دیکھتا ہوں کہ آج ہم دونوں میں سے کون باقی رہتا ہے۔ میں نے تلوار کبھی چھوئی بھی نہ تھی، لیکن اس وقت مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں ایک ماہر شمشیر زن ہوں۔ راجہ باسودیو نے اپنے گھوڑے کو حرکت دی اور گھوڑا تیر کی طرح میری طرف لپکا۔ باسودیو کا ترسول میرے جسم میں پیوست ہونے کے لیے جھکا ہوا تھا۔ جوں ہی وہ میرے قریب سے گزرا، میں نے پینترا بدل کر اس کا وار خالی دیا، باقی بلکہ خود بھی اس پر حملہ کر دیا۔ میری برق صفت تلوار اس کے گھوڑے کی پچھلی ٹانگ پر پڑی اور گھوڑا 3 ٹانگوں کا رہ گیا۔ اس نے کلا بازی کھائی اور باسودیو منہ کے بل نیچے آ رہا۔ اس کے ترسول کا پھل زمین میں 1 فٹ کے قریب دھنس گیا تھا۔ میں اسے ترسول نکالنے کا موقع نہ دیا اور تلوار لے کر اس پر چھلانگ لگا دی۔ میرے جسم میں انگارے بھرے ہوئے تھے۔ نہ جانے مجھے کیوں محسوس ہو رہا تھا کہ یہ وقت تمام عمر کے بدلے لینے کا ہے، اور میں اس وقت باسودیو کو ہر قیمت پر قتل کر دینا چاہتا تھا۔ میں نے اس پر تلوار کا بھرپور وار کیا، لیکن وہ جھکائی دے کر نکل گیا۔ اس وقت اس کے دوسرے ساتھی نے اس کی طرف اپنا چوڑا کھانڈا اچھال دیا۔ باسودیو نے کھانڈا پکڑ لیا۔ چوڑا اور وزنی کھانڈا سنبھال کر باسودیو مجھے گھورنے لگا۔ اس وقت اس کا لشکر اسے تقریباً 50 گز دور خاموش کھڑا تھا، لیکن سب کی غیظ و غضب میں ڈوبی آنکھیں مجھ پر لگی ہوئی تھیں۔ میں نے ان کی کوئی پرواہ نہیں کی اور باسودیو کے وار کا انتظار کرنے لگا۔ باسودیو بھی کھانڈا تولے مجھ پر نظریں جمائے پینتری بدل رہا تھا۔ پھر اس نے موقع پاتے ہی کھانڈے کا بھرپور وار کیا اور میں بجلی کی طرح ایک طرف کود گیا۔ میں نے اس پر ترچھا وار کیا، لیکن باسودیو بھی ہوشیار تھا۔ وہ پلٹا کھا گیا اور میری تلوار اس کے شانے کے پاس سے نکل گئی۔ ہم دونوں پھر آمنے سامنے تھے۔ ہماری آنکھوں میں خون تھا اور دل میں ایک دوسرے کو قتل کر دینے کی خواہش، لیکن دونوں مد مقابل زوروار تھے۔ میرے پاس ایمان کی قوت تھی تو شیطان باسودیو کے ساتھ تھا۔ ہم نے ایک دوسرے پر وار کیا۔ باسودیو کا کھانڈا وزنی تھا، اس لیے اسے خود کو بچانے کے بعد کھانڈا بھی سنبھالنا پڑتا تھا، اور اس کے برعکس میری تلوار ہلکی تھی، اور اس بار میں نے اپنی تلوار کے ہلکے پن سے پورا فائدہ اٹھایا۔ باسودیو نے میرے اوپر کھانڈے کا وار کیا اور میں نے اس کے وار کو خالی دیتے ہوئے
तलवार का वार भी कर दिया। बासदियो उस वार को खाली देने के लिए पूरी तरह तैयार था और मैंने यूं भी जानबूझकर उस वार को हल्का किया था ताकि उसके फ़ौरन बाद दूसरा वार कर सकूं, और यही हुआ। बासदियो मेरी मतवक्का वार खाली देकर अपने खांडे की तरफ मतवज्जा हुआ और मैंने एक भरपूर वार उस पर कर दिया। बासदियो की गर्दन उसके शानों से अलहदा होकर कई गज दूर जा गिरी और मेरी तलवार से खून टपकने लगा। लेकिन बासदियो का लश्कर अब भी खामोश खड़ा हुआ था। बासदियो का जिस्म ज़मीन पर गिर पड़ा और उसकी कटी हुई गर्दन दूर तड़प रही थी। बासदियो के कदम उसकी तरफ पड़े और उसने दोनों हाथों से गर्दन उठाकर फिर अपने शानों पर रख ली और तलवार लेकर मेरे मुकाबल आ गया। ये देखकर मेरा दिल टूटने लगा और मैंने एक बार फिर संभालिया देकर उस पर वार कर दिया। लेकिन बासदियो की मदाफ़त में अब पहले जैसी जान नहीं थी और एक बार फिर उसकी गर्दन शानों से उड़ गई, लेकिन बेफ़ायदा। उसने गर्दन दोबारा उठाकर शानों पर रखी और खांडा लेकर मेरे मुकाबल आ गया। लेकिन अब उसका लश्कर उसकी कमज़ोरी महसूस कर चुका था। चुनाचा उन सब ने हथियार बुलंद किए और महाराजा बासदियो की जय का नारा लगाकर मेरी तरफ दौड़ पड़े। लेकिन उसी वक्त न जाने क्या हुआ, आगे दौड़ने वाले घोड़े बुरी तरह ज़ख्मी होकर नीचे गिरे और उसके साथ ही बासदियो के लश्कर में अबतरी फैल गई। तलवारें चलने की आवाज़ें सुनाई दी। बासदियो का लश्कर भी सहमे हुए अंदाज में हमले कर रहा था, लेकिन उनके घोड़ों की ज़ीनें खाली होती जा रही थी। किसी गैर मरे लश्कर ने उन पर हमला कर दिया था और तेज़ी से उनका सफाया कर रहा था। मैं बासदियो की तरफ देखा जो खांडा उठाए शराबियों के से अंदाज में झूम रहा था और इस बार मैंने उसकी कमर पर वार करके उसके 2 टुकड़े कर डाले, लेकिन नतीजा कुछ भी ना हुआ। उसके जिस्म के दोनों टुकड़े ज़मीन पर घिसटते घिसटते एक दूसरे से आ मिले और वो फिर उठकर खड़ा हो गया, लेकिन अब उसने खांडा फेंक दिया था। फिर वो लपक कर एक घोड़े पर चढ़ गया और उसने अपने लश्कर को भाग जाने का मशवरा दिया। दूसरे लम्हे घोड़ों के रुख बदल गए और वो बुरी तरह भाग निकले। मैं तलवार ज़मीन से टेक के भागने वालों को देख रहा था। दफ़तन मैं गिरते गिरते बचा। तलवार अचानक मेरे हाथ से निकल कर गायब हो गई। मैंने चौंक कर पुष्ट की तरफ देखा, लेकिन वहाँ कोई नज़र न आया। फिर मैंने सामने देखा जहाँ चंद साइद कबल एक शिकस्त खुर्दा लश्कर भाग रहा था, लेकिन मेरी हैरत की इंतहा न रही जब मुझे सामने चीटल पहाड़ों के अलावा कुछ नज़र न आया। लेकिन शिकस्त खुर्दा लश्कर मरने वालों की एक भी लाश वहाँ मौजूद न थी। यहाँ तक कि मेरे करीब बासदियो के जिस्म से बहने वाले खून के निशान भी बाकी ना रहे। मैंने एक ठंडी सांस ली। बहरहाल बासदियो से मेरा ये आखिरी मार्का खूब रहा और इस मार्के में बासदियो को मुकम्मल शिकस्त हुई। मेरा जिस्म शल हो रहा था, मैं भूख से नढाल था। उस पर इतनी मशक्क़त की थी, इसलिए और बुरा हाल हो गया। लेकिन अब मंजिल दूर ना थी और मेरे कदम मंजिल की तरफ बढ़ गए। मैं थकन से चूर होने के बावजूद पूरी लगन से मस्जिद की तरफ जा रहा था और अब मेरे रास्ते में कोई रुकावट नहीं रह गई थी। मैं चलता रहा और मंजिल करीब आती रही और थोड़ी देर के बाद वो मस्जिद मेरे सामने थी। वही बसीदा मस्जिद, जिसके दरवाजे पर पहली बार मुझे शेर नज़र आया और इसके बाद एक गहरी खंदक। मस्जिद का बसीदा दरवाज़ा बंद था। मैं चंद सायत रुक कर उसे देखता रहा और फिर मेरे कदम आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियों की सिमत बढ़ गए और जो ही मैंने पहली सीढ़ी पर कदम रखा, मस्जिद का चूबी दरवाज़ा एक दिल नशीन आवाज़ के साथ खुल गया। अंदर से एक मस्त कुन खुशबू की लहर निकल कर मेरे नाक से टकराई और मेरा जहन मुअत्तर हो गया। मेरे होंठों पर खुद ब खुद मुस्कुराहट फैल गई। मेरी आंखों की रोशनी बढ़ गई और भूख का एहसास जाता रहा। मुझे परिंदों के खुशगवार नगमे सुनाई देने लगे। ये अजीब सैर अंगेज़ आवाज़ें थीं जो मेरे जहन और दिल को सरूर बख्श रही थीं। मैंने दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा और मस्जिद के अंदर का मंजर मुझे नज़र आने लगा। मैं सोच भी नहीं सकता था कि बाहर से बोसीदा नज़र आने वाली ये मस्जिद अंदर से इस कदर खूबसूरत होगी। सामने ही एक लंबा हौज़ नज़र आ रहा था जिसके दरमियान लगे हुए फवारों में पानी की धारें उबल रही थीं। गहरे सब्ज़ दरख्त लहलहा रहे थे। खुश रंग फूल चारों तरफ झूम रहे थे। तीसरी सीढ़ी से गुजरकर मैं दरवाजे के करीब पहुंच गया और मुझे चारों तरफ अजीब से रोशन साए महसूस हुए। मुझे एहसास हुआ कि जैसे मैं यहाँ तन्हा नहीं हूँ। मेरे करीब बहुत से लोग हैं जो मुझे देख रहे हैं और मेरे इस ख्याल की फ़ौरन ही तस्दीक भी हो गई।
मेरी गर्दन में फूलों के हार पड़ने लगे। हार डालने वाले हाथ मुझे नज़र नहीं आए, लेकिन मैं उनकी सरसराहटें महसूस कर रहा था। मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं कतार दर कतार खड़े हुए लोगों के दरमियान से गुज़र रहा हूँ और वह सब मुझ पर फूल बरसा रहे थे। मेरा पूरा जिस्म फूलों की नाजुक पत्तियों से ढक सा गया और मेरे कदम खुद ब खुद मस्जिद के उस दरवाज़े की तरफ उठ रहे थे जो बंद था, और मेरे करीब पहुंचने पर वो दरवाज़ा भी खुल गया और मैं उससे अंदर दाखिल हो गया। अंदर धीमी और ठंडी रोशनी फैली हुई थी और उस नीली रोशनी में एक आरामदा मसहरी पर वो महवे ख्वाब थी, वीनस के मुजस्मे से ज़्यादा खूबसूरत, मेरे तसव्वुरात से कहीं ज़्यादा हसीन, और उसके चेहरे पर बेपनाह तकद्दुस और पाकीज़गी थी। मैं बेख्तियार हो गया। मेरा दिल उसके कदमों में लौटने लगा। मेरे जहन में जुनून परवरिश पाने लगा। मेरा दिल बेख्तियार चाहा कि मैं आगे बढ़कर उस कोमल कदमों को चूम लूँ, लेकिन दरमियान तारे अंकबूत हायल था, चांदी जैसी चमकदार तारों का हिसार। मैं आगे बढ़कर उसके कदमों के करीब पहुँच गया और मैंने दोनों हाथ आगे बढ़ाकर चांदी के तार तोड़ दिए और एक नूरानी धुआं बुलंद हो गया, एक अजीब धुआं जिसमें एक अनोखी महक थी। मैं उसके सरापे को देख रहा था। वो एक रेशमी लिबास में मलबूस थी, कफन नुमा लिबास जो उसके पूरे जिस्म के मुनासिब तौर से ढके हुए था। चांदी के तार धुआं बनकर फ़िज़ा में तहलील हो चुके थे और फिर मेरी आंखों ने उसके सीने का ज़ेरो बम देखा। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। वो सांस ले रही थी, हाँ वो सांस ले रही थी, गहरे गहरे सांस, और फिर उसके गुलाब की पत्ती जैसे होंठों पर एक हसीन मुस्कुराहट फैल गई। ऐसी मुस्कुराहट जैसे फूल शबनम से धुलकर मुस्कुराने लगते हैं। शायद वो कोई ख्वाब देख रही थी, कोई हसीन ख्वाब। और फिर मुस्कुराहट सिमट गई। अब उसके चेहरे पर खौफ के आसार नज़र आए। वो परेशान सी थी और उसी आलम में उसने अपना एक मरमरी हाथ बुलंद किया जैसे वो किसी का सहारा लेना चाहती हो, और मैं दीवाना वार आगे बढ़ गया और मैंने उसका नाजुक हाथ थाम लिया और मेरे लम्हों से उसने आंखें खोल दी। आह कैसा सहर था! उसकी आंखों में कैसा जादू था! उन आंखों में सादगी, भूलपन, हैरत, सब कुछ उन निगाहों में शामिल हो गया था। और फिर उसे मेरी मोहय्यत और मेरे हाथ के लमस का एहसास हुआ और उसने अपना नाजुक हाथ खींच लिया। वो सर पर कफन बराबर कर रही थी जिससे उसके रेशमी स्याह बाल ढक गए और उसकी नज़रें झुक गईं और चेहरे पर शर्म के आसार उभर आए, और फिर वो आहिस्ता से उठकर मसहरी पर बैठ गई। मैं अपने होश में नहीं था। मैं पूरी कायनात को भूल गया था। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ वो याद थी, उसके अलावा दुनिया में कुछ ना था। मैं बेख्तियार होकर उसके पाइंती बैठ गया। मुझे गुनहगार ना करें, आपकी जगह वो नहीं है। वो जल्दी से मसहरी से उतरते हुए बोली, और आपके कदमों में तो मेरी जगह है। और उसकी आवाज़ का तरन्नुम मेरे कानों में रस घोल गया। तुम्हारा नाम क्या है? मैंने उससे सवाल किया। तस्नीम, उसने मुतरन्नम आवाज़ में कहा। मेरा नाम शारक है, शारक बज़मी, मैंने कहा। मैं जानती हूँ, उसने गर्दन झुकाए झुकाए कहा। वो कैसे? तुम मुझे कैसे जानती हो? मैंने मुस्तरबाना और पुरशोक लहजे में कहा। आपके अलावा मैं और किसे जानूंगी? आपने मेरे लिए अपना घर बार लुटाया है। आपने मेरे लिए जो कुर्बानियाँ दी हैं, क्या मैं उनसे भी वाकिफ़ नहीं होंगी? मेरे जिस्म का रुआं रुआं आपका शुक्रगुजार है। मैं आपको उस वक़्त से जानती हूँ जब मनहूस राजा बासदियों ने आपकी पुश्त पर सवार होकर मस्जिद तक आने की कोशिश की थी। मेरा जिस्म सो रहा था लेकिन रूह जाग रही थी, और फिर मेरी रूह आपका ताक़ुब करती रही। मैं आपको पहुंचने वाली हर अज़ियत पर तड़प उठती थी। आपको नहीं मालूम, मेरी रूह ज़ख्मों से चूर है। ये ज़ख्म आपकी तकलीफ़ के हैं। मेरी रूह उस वक़्त भी दर्द कर्ब से तड़प रही थी जब आप मौत की तलाश में सरगर्दा थे, जब आप खुदकुशी करना चाहते थे। और यकीन कीजिए, अगर खुदा न ख्वास्ता आप खुदकुशी में कामयाब हो जाते तो मैं खुदा कुद्दूस से दुआ करती कि मुझे अब किसी ज़िंदगी की ज़रूरत नहीं है। मुझे भी मौत देकर आपसे मिला दें। मैं आपके बगैर ज़िंदा नहीं रहना चाहती थी शारक साहब। और फिर वो मैं ही तो थी जिसने आपको तरसोल खंड के मनहूस कैद खाने में रास्ता बताया था। मैं मजबूर थी शारक साहब, मेरे इख्तियारात महदूद थे, वरना मैं आपको ज़रा भी तकलीफ़ ना पहुंचने देती। मेरी ज़िंदगी, मेरी रूह, तुम्हें पाकर मैं दुनिया की हर तकलीफ़ भूल गया। वो अज़ीज़ें जिनके बदले में तुम मिली हो, मेरे लिए दुनिया भर की राहतों से ज़्यादा नहीं।
मुझे अब दुनिया से कोई शिकायत नहीं है मेरी रूह। मैंने जज्बात से भरपूर लहजे में कहा। मुझे एहसास नहीं है कि कब मैंने उसे अपने बाजुओं में लेकर उसका सर अपने सीने से लगा लिया था। मुझे तो उस वक़्त होश आया जब उसने आहिस्ता से ख़ुद को मेरे जिस्म से अलग करते हुए कहा, हम मुसलमान हैं, हमारे मज़हब में बग़ैर निकाह के एक दूसरे से कुर्ब जायज़ नहीं। मेरी रूह भी आपके वसाल के लिए तड़प रही है, लेकिन हमें पहले मजहबी तौर पर एक होना पड़ेगा। मैं शर्मिंदा हूँ, मैंने उससे अलहदा होते हुए कहा। और उसी वक़्त हमने कदमों की आवाज़ें सुनी और चौंक का दरवाजे की जानब देखने लगे। अंदर दाखिल होने वाली नस्तरन थी। मैं उसे देखकर खुशी से उछल पड़ा। अरे नस्तरन तुम? ए अल्लाह मियाँ, इस हसीन जोड़े को बुरी निगाह से महफूज रखे। मियाँ तलब कर रहे हैं। बाहर मिर्ज़ा बरक खड़े हैं, मारे शर्म के अंदर नहीं आए। चलो मियाँ, वहीं तुम्हारे निकाह की तैयारियाँ मुकम्मल हो चुकी हैं। मैंने तस्नीम की तरफ देखा। वो शर्माए हुए अंदाज में उठ खड़ी हुई। हम दोनों नस्तरन की रहनुमाई में बाहर निकल आए। बाहर मिर्ज़ा बरक सफ़ेद शेरवानी में मलबूस अपने मखसूस अंदाज में मुस्कुरा रहे थे। मुबारक हो शारिक साहब, राजा बासदियों को मुकम्मल शिकस्त हो गई और खुदाई बुज़ुर्गो बरतर ने आपको आपकी मेहनत का समर अता कर दिया। उसमें आपकी अमदाद शामिल है मिर्ज़ा बरक, मैंने ममनून लहजे में कहा। अरे मियाँ, हमारा क्या है, हम तो हुक्म के बंदे हैं। आओ। मिर्ज़ा बरक ने मेरा हाथ पकड़ा और हस्बे मामूल मुझसे आंखें बंद करने के लिए कहा। और फिर सिर्फ चंद सेकंड के बाद मिर्ज़ा के कहने पर मैंने आंखें खोली तो हम उसी मज़ार शरीफ पर थे जहाँ एक बार मैं और आरफ़ गए थे और जहाँ से मैं आरफ़ को शाहदा को छोड़कर रवाना हुआ था। आरफ़ और शाहदा मेरे सामने खड़े थे। मैंने आगे बढ़कर दोनों को गले लगा लिया। आरफ़ के चेहरे पर अब छोटी सी दाढ़ी नज़र आ रही थी और पेशानी पर नमाज का निशान था। उन दोनों ने भी मेरे और तस्नीम के गले में फूलों के हार डाले और फिर हमें एक हुजरे में पहुंचा दिया गया जहां बहुत से नूरानी शक्ल वाले लोग बैठे हुए थे। नस्तरन और शाहदा ने तस्नीम का हाथ पकड़ा और हुजरे की दूसरी तरफ किसी हिस्से में ले गईं। मुझे वहीं बिठा लिया गया। फिर वही बुज़ुर्ग मेरे पास आए जो मुझे एक मखसूस हिस्से में छोड़ गए थे और मेरे सामने बैठ गए। उन्होंने बुज़ुर्ग ने वो कड़ा मुझे दिया था जिसने मुझे बासदियों के तिलस्म से महफूज रखा था। तुम्हारे जहन में उस लड़की के बारे में बहुत से सवालात होंगे सारज़ादे। तुम दोनों को अज़दवाजी ज़िंदगी में बांधने से कबल मुझे तुम्हें उसके बारे में सब कुछ बता देने की हिदायत है ताकि तुम उसे बहसीयत मनकूहा कबूल करो तो तुम्हारे जहन में उसके लिए कोई सवाल ना हो। वो लड़की इसमें बासमा है, कौसर तस्नीम की तरह पाको साफ़, हूरों की तरह मासूम व सादा, और उसकी दास्तान यूँ है। अब से सदियों कबल की दास्तान है कि ये इलाका राजा कंड कहलाता था। राजा कंड हिंदू राजाओं का बहुत बड़ा स्थान था। ये इलाका जादू मंतर का इलाका था। हिंदू राजा यहाँ आकर मंतर सीखते थे और जादूगर बनकर जाते। उस ज़माने में जादू आम था और किसी राजा का इल्म उस वक़्त तक मुकम्मल नहीं होता था जब तक वो यहाँ आकर जादू ना सीख ले। राजा उस हद तक जादू सीखते थे जिस कदर उन्हें राजपाट के कामों में उसकी ज़रूरत होती थी। लेकिन राजा बासदियों बहुत हवस परस्त और अयाश राजा था और जब वो गद्दी संभालने से पहले यहाँ जादू सीखने आया तो उसकी मुलाकात हरातरन से हुई। ये एक नापाक हिंदू देवी है। हरमातरन ने उसे बताया कि अगर वो चाहे तो अब्दी ज़िंदगी हासिल कर सकता है। हरमातरन हर हिंदू राजा को ये बात बताती थी, लेकिन दूसरे राजाओं को हमेशा ज़िंदा रहने की ख्वाहिश ना हुई। अलबत्ता बासदी उसके चक्कर में आ गया और उसने हरमातरन की शागिर्दी कबूल कर ली और उससे वो जादू सीखे जिनकी उसे राजपाट के कामों में ज़रूरत नहीं थी। और इस तरह वो एक बहुत बड़ा जादूगर बन गया। और फिर अपनी उस्ताद हरमातरन के साथ ही वो चश्मा हैवानात तक गया और उसने उसका पानी पी लिया। राजा बासदी अमर हो गया, लेकिन उसका जिस्म पत्थर की तरह सख्त हो गया था। वो अपनी मर्ज़ी से हिलने के काबिल भी ना रहा। तब हरमातरन ने उसे बताया कि अब वो क़यामत तक उसी तरह रहेगा। हाँ, अगर वो इंसान की जून में रहना चाहे तो उसे एक और शर्त पूरी करनी होगी।
बासुदेव इस मुसीबत से बुरी तरह घबरा गया था। यहाँ उसके तमाम जादू धरे रह गए और उसने वो दूसरी शर्त पूरी करने का वादा कर लिया और हर मातर ने उसे उस वक़्त तक के लिए फिर से इंसान बना दिया जब तक वो शर्त पूरी ना करे। और उसने कहा कि बासुदेव यहाँ एक मंदिर तामीर कराए जिसका नाम तरसूल खंड हो। उस मंदिर में वो किसी ऐसी साहिब ईमान लड़की को लेकर आए जो मुसलमान हो और उस लड़की को उस मंदिर की दासी बना दे। बासुदेव को अपनी अब्दी ज़िंदगी अजीज़ थी और उसके पास बेपनाह शैतानी क़ुव्वतें थी। चुनाचा उसने ये शर्त पूरी करने का वादा कर लिया और किसी ऐसी मुसलमान कुमारी लड़की की तलाश में निकल गया जो साहिब ईमान हो। और फिर हिंदुस्तान के एक दूर आस्तादा हिस्से में, जिसे अब तुम तारागढ़ के नाम से पुकारते हो, उसे अपने मतलब की एक लड़की मिल गई। ये लड़की एक आलमो आबद शख्स मौलवी उस्मान अली की थी और उसका नाम तस्नीम था। मौलवी उस्मान अली हमारे पीरो मुर्शिद के मुतक़दीन में से थे और अक्सर उनकी खिदमत में हाज़िरी देते रहते थे। राजा बासुदेव की नज़र में वो लड़की चढ़ गई और एक रोज़ उसका जादू चल गया। वो उस मुसलमान लड़की को अगवा करके वहाँ से चल पड़ा और अभी सिर्फ वहाँ तक पहुँचा था जहाँ तुमने वो मस्जिद देखी थी कि पीरो मुर्शिद ने उस शख्स यानी मौलवी उस्मान को साने की इतला दी। मौलवी उस्मान अपनी बच्ची के गम में पागल हो गया और उसने रो रो कर पीरो मुर्शिद से अर्ज़ की कि वो अपनी बच्ची की मौत पसंद करेगा, लेकिन ये पसंद नहीं करेगा कि वो हिंदुओं के शैतानी बुतों के सामने रक्स करे और फिर उम्र भर की रियादत खो बैठे। राजा बासुदेव के चुंगल से लड़की को निकालना आसान काम ना था। वो लड़की की कमज़ोरी से फ़ायदा उठाकर उस पर पूरी तरह काबू पा चुका था, लेकिन एक तरकीब निकल ही आई। पीरो मुर्शिद ने फरमाया कि अगर वो बच्ची साहिब ईमान है तो उससे ईमान की कुव्वत कोई नहीं छीन सकता। पीरो मुर्शिद ने कहा कि वो इतना कर सकते हैं कि राजा बासुदेव इस वक्त तक उस लड़की को वहाँ से ना ले जा सके जब तक मौलवी उस्मान उससे मुलाकात ना करे। मौलवी उस्मान बच्ची से गुफ्तगू करे और उससे पूछे कि वो साहिब ईमान रहकर बनना चाहती है या ईमान खोकर। अगर बच्ची अपना ईमान कायम रखने के लिए तैयार हो तो उसे सदियों की मौत मरना पड़ेगा और फिर किसी दिन कोई दूसरा साहिब ईमान शख्स उसे मसनूई मौत से निजात दिलाएगा। मौलवी उस्मान ने यह बात गनीमत समझी और उसे अपनी तरबियत और बच्ची के ईमान पर यकीन था। चुनाचा मुर्शिद के करम से वो उस जगह पहुंच गया जहां उसकी बच्ची पाया जंजीर थी और उसने बच्ची के सामने ये माजरा रख दिया। मौलवी उस्मान को मायूसी न हुई। बच्ची ने बसद खलूस मौत पसंद की और मुर्शिद ने उसे खुदा की हिफाजत में दे दिया। मौलवी उस्मान को हिदायत मिली कि वो वहाँ एक मस्जिद तामीर कराए और उसके एक हुजरे में लड़की के आराम का बंदोबस्त कर दे। चुनाचा मौलवी उस्मान ने मुर्शिद की हिदायत के मुताबिक अमल कर दिया। लड़की को मसहरी पर सुलाकर उसके गिर्द तारे अंकबूत कैम कर दिया गया और बासुदेव को वहाँ से निकाल दिया। शैतान बासुदेव अपनी नाकामी पर बहुत झिल्लाया। उसके लिए मुसीबत ये थी कि शर्त के मुताबिक अब वो सिर्फ़ उस लड़की को तरसूल खंड तक ले जा सकता था और उसके लिए मजबूर था, लेकिन अपने नापाक कदमों से वो उस पाक जगह दाखिल नहीं हो सकता था। उसने हर मातरन से मोहलत मांगी और वादा किया कि उसकी कुव्वतों को उस वक़्त तक कायम रहने दिया जाए जब तक वो उस मुसीबत का कोई हल ना सोच ले। उसका ख्याल था कि वो कोई तरकीब निकाल लेगा और सोई हुई तस्नीम को उठाकर तरसूल खंड ले जाएगा। उसके बाद तस्नीम को मंत्रों के ज़रिए जगाकर उसे दासी बना देना मुश्किल काम ना था और वो अपनी तगो-दो में लगा रहा और उस वक़्त का इंतज़ार करने लगा जब तस्नीम को जगाने वाला पैदा ना हो जाए। और फिर ये काम तुम्हारी किस्मत में लिखा था। राजा बासुदेव ने तुम्हें देखा और पहचान गया कि सिर्फ तुम हो जो उसे मस्जिद में ले जा सकते हो, क्योंकि तुम ही वो शख्स थे जिसके मुकद्दर में तस्लीम का हसूल था। वो तुम्हारी पुश्त पर सवार हो गया और यहाँ से तुम्हारी कुव्वत ईमानी का इम्तहान शुरू हो गया। तुम्हारी मदद उस वक़्त भी की जा सकती थी जब बासुदेव तुम्हारी पुश्त पर सवार था। तुम्हारी मदद उस वक़्त भी की जा सकती थी जब तुम्हारे बिस्तर पर 3 कटे हुए सर मिले थे। हर मौका पर तुम्हारी मदद की जा सकती थी, लेकिन ये इम्तहान भी मकसूद था कि तुम इस मनसब के अहल भी हो जो तुम्हें सौंपा जाना है या नहीं। और तुम हालात का मुकाबला करते रहे। तुमने खुदकुशी करने का फ़ैसला किया, लेकिन तुम इस बात के लिए तैयार ना हुए कि किसी नापाक रूह को पाक मस्जिद में ले जाओ। और तुम्हारी इम्तहानात का दौर जारी रहा। तुम हर इम्तहान में पूरे उतरे।
लेकिन जब मरदूद बासदियो तुम्हारी बहन को तरसूल खंड के लिए लेकर जाने लगा तो मुर्शद से रहा ना गया और उन्होंने उस दूसरी मुसलमान बच्ची को अपनी पनाह में ले लिया। तुम्हारा इम्तहान मुकम्मल हो गया, इसलिए मिर्ज़ा बरक को तुम्हारे पास भेजा गया और बरक तुम्हें यहाँ ले आया। तस्नीम हूरों की तरह पाक है और उसके वालिदैन के इंतकाल को सदियाँ बीत चुकी हैं और अब सिर्फ तुम उसके वारस हो। बोलो, तुम्हें ये मासूम बाकरा कबूल है? तुमने उसके असूल के लिए जो कीमत अदा की है तुम उस पर सरशार हो। मैं इस इसरार कहानी के तिलस्म में खोया हुआ था और इस अजीबो गरीब और हौलनाक कहानी ने मेरे जहन के तार झंझोड़ कर रख दिए थे। कई मिनट तक मैं उन बुज़ुर्ग की बात का कोई जवाब ना दे सका। फिर मैंने संभल कर कहा, जहाँ तक मेरी ज़िंदगी का सवाल है मोहतरम, मैं उसे 100 बार इस लड़की पर कुर्बान कर सकता हूँ, लेकिन मैं उसे अपने वालिदैन का नामदल बदल नहीं समझता। बेशक औलाद के लिए वालिदैन से बड़ी चीज़ और कोई नहीं। ये तुम्हारे साबे ईमान होने की एक और दलील है शारक। लेकिन मश्ते ऐज़दी उनकी मौत उसी तरह लिखी थी और इस सिलसिले में जो भी काम आया वैसे मौत उसका मुकद्दर थी। तुम तो सिर्फ एक ज़रिया बने। बहरहाल उन शहीदों को रूह भी खुश होगी कि उनकी औलाद इस कदर साहिब ईमान है। मैंने गर्दन झुका दी। जवाब दो, मौलवी उस्मान की लड़की को उन वाक़यात के सुनने और समझने के बाद तुम बेरज़ा और रग़बत अपनी ज़ौजियत में कबूल करने को तैयार हो। मैं तैयार हूँ, मैंने जवाब दिया। और फिर हमारे निकाह के इंतज़ामात होने लगे। मुझे पहनने के लिए लिबास दिया गया। नसरन और शाहदा तस्नीम के पास थीं। आरफ बेहद खुश था। वो मुझे दुल्हा बने देखकर खुशी से फूला नहीं समा रहा था। बहुत तवील अरसे के बाद हमें खुशी नसीब हुई। बहरहाल उन्हें बुज़ुर्ग ने तस्नीम से मेरा निकाह पढ़ाया और हम शरई तौर पर एक दूसरे के हो गए। उस हुजरे को हमारा हिजला अरूसी करार दिया गया और जब मैं हिजला अरूसी में दाखिल हुआ तो पूरा कमरा तस्नीम के हुस्न की ज़िया से मुनव्वर था। ये मेरे आरज़ुओं की तकमील थी। मेरे सब्र आज़मा का इम्तहान का समर था और मैं समर को हासिल करके कायनात को फरामोश कर बैठा था। तस्नीम ने भी बेहसियत बीवी अपने एक एक अदा मुझे सौंप दी और दूसरी सुबह हमारे एजाज़ में दावत वलीमा थी। ऐसा ज़बरदस्त इंतज़ाम किया गया था कि मैं देखता रह गया। दर्जनों किस्म के खाने थे और न जाने कहाँ कहाँ से मेहमान शरीक हुए थे। हमारी पुरमसरत शबो रोज़ गुजरते रहे और फिर एक शाम उन्हीं बुज़ुर्ग ने मुझसे मुलाकात की और कहा, तुम्हारी ज़िंदगी की शाम ढल चुकी है शारक, और अब मसरतें ही मसरतें हैं। तुम तारीक़ दुनिया नहीं बल्कि एक दुनियादार इंसान हो। अपनी दुनिया में जाओ और उसे आबाद करो। जहाँ तक हो सके बाईमान रहो और अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना होने दो। तुम्हारे बहन और भाई तुम्हारे साथ जाएंगे। आरफ और शाहदा के तुम वारस हो। किसी नेक लड़की से आरफ का उक़द कर देना और किसी साहिब ईमान मर्द से शाहदा का निकाह, और ये अब तुम्हारा काम है। बासदियों के बारे में जान सकता हूँ मोहतरम, मैंने उन बुज़ुर्ग से पूछा। हाँ, उस मरदूद का अंजाम भी देख लो, बुज़ुर्ग ने कहा, और उन्होंने पहले की तरह कोई दुआ पढ़कर मेरे दोनों हाथों में फूंकी और कहा, देखो उस बदकिरदार का अंजाम। और मैंने अपने दोनों हाथों के आईने में देखा। सबसे पहले मुझे त्रिशूल खंड नज़र आया। ऐसी बदनुमा और बद रौनक इमारत जिसे शैतानी अमल से खूबसूरत बना दिया गया था, अब एक खौफनाक खंडर नज़र आ रही थी और उस खंडर के एक हिस्से में करी सूरत बूढ़ा बासिद ज़मीन में आधा दफन था और उसके पूरे जिस्म से छोटे बड़े सांप लिपटे हुए थे। सर पर बिच्छू रेंग रहे थे। तरह तरह के हशरातल अर्द उसके जिस्म को खा रहे थे और उसकी आँखों, नाक, मुंह और कानों में घुसे हुए थे। कभी कभी बासिद अपने बेहकरी हाथों से किसी कीड़े को अपने मुंह से निकालकर फेंक देता था, लेकिन एक आध को बाकी कीड़े शायद उसके हल्के रास्ते पेट तक उतर गए थे। उसके चेहरे के वो हिस्से जो कपड़ों से खुले हुए थे तकलीफ़ से मसक हो गए थे। मैं उसकी ये खौफनाक हालत देखकर दहशत से कांप उठा। ये कब तक इस हालत में रहेगा मोहतरम बुज़ुर्ग? अब तक ये आबे हयात पी चुका है, इसलिए इसे मौत नहीं आएगी, वो ज़िंदा रहेगा, लेकिन इस हाल में कि जिसमें तुम उसे देख रहे हो। हवसे दुनिया बहुत बुरी चीज़ है शारक मियाँ। रब्बे मग़फ़रत ने इंसान को फ़ानी बनाया है और उसके बनाए हुए कानून से बगावत करके इंसान का हशर इसके अलावा और क्या हो सकता है। बेहतर यही है कि उसकी दी हुई ज़िंदगी ईमान के साथ गुजारो, और जब मताए ज़िंदगी ख़त्म हो जाए तो ईमान के साथ जान और इस जान आफरीन के सुपुर्द कर दो। यही असूल दुनिया और यही उसका कानून है। और फिर उस रात की सुबह हम जागे
تو ایک بھرے پورے شہر کے ایک خوبصورت ہوٹل میں تھے۔ شاہدہ اور عارف اور تسنیم بھی میرے ساتھ تھے۔ ہماری زندگی کا دنیاوی دور شروع ہو گیا تھا۔ میں نے اور عارف نے مل کر نئی زندگی شروع کر دی۔ اب خدا کا شکر ہے شاہدہ کی شادی ہو چکی ہے، عارف کے بھی 2 بچے ہیں اور قدرت نے ہمیں بھی اس اولاد سے نوازا ہے۔